أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. I hope so you are fine. I'm also fine, alhamdulillah. So let's start our today's session, science session. And as you know, Mars, our topic is new, but Hashir didn't came since so long. So let me introduce him the topic, which is life. Okay, so what is life? This was our previous topic, Hashir. I hope so you are fine. You didn't come for so much long time. I think you were busy. So it's fine. Well, we learned a little bit about Big Bang in Quranic verses. Then we started the new topic, which is, let me share my screen. 1 minute. I hope so my voice is audible to you and you can see the screen. So, our topic is life, basic topic. And this is the question, what is life? Well, after Big Bang, we recognize life. You know why? Because there are so much forms of life, such as planets being formed, the universe being formed, and after that, real humans with life who can react, who can do so many things, who have complex cells, they start being formed. Okay, so we are learning this topic, which is a little bit complex, but is also interesting in its sense. So, when you were not there in the previous and the pre-previous session, so Paul and Mars were there, and we learned about what is life. Today we will learn about why is life crucial for us, and together we will think about it logically. So, Hasha, did you understand any all of the things whatever I told you up till now about life? I hope so, Hasha and Usher. I'm Ashkar. Ashkar is Ashkar is doing his class. Okay, it's okay. But Usher, I hope so you understood about life. So, Yes. let's see the definition of life together. So, life, let me ask from Mars, as I wanted him to research previous session. I already told him that this is the homework. Yes, Mars, did you do the research on life? Basic definition, let me know, can you? I don't remember it if it was class today, so I forgot it. Okay, it's fine. But let me give you one more day. Tomorrow, because tomorrow is our session as well. And then you have to tell me tomorrow. So do this research as well. So let me tell you about the meaning. Asher. Well, life is a quality that makes a difference between living things and non-living things. Asher, kindly let me know, may I use English or Urdu? Mix. Okay, okay. Up till now, did you understand everything because it was in English? Yeah. Some things. Okay, let me repeat again. So अभी तक जितना भी मैंने बोला ना वो ये है कि जो लाइफ है ना ये एक ऐसी चीज है कि जो फर्क रखती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ये जानदार और नॉन लिविंग थिंग जो बेजान। अच्छा, इसमें भी कुछ फर्क होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि
ये देखिए नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनमें बेजान चीज मटेरियल को कह सकते हैं, वरना हम लोग एक ऐसे शख्स को भी कह सकते हैं जो मर गया, या एनिमल को जिसमें लाइफ नहीं होती। उसकी बॉडी तो होती है लेकिन लाइफ नहीं होती उसमें। समझ आई आपको? नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग थिंग में फ़र्क ही है। इसमें मेरी अलग से अभी मैं आप लोगों के साथ ही स्लाइड बना लूँगा। नो वरीज़। सो ये लाइफ की क्वालिटी है कि ये फ़र्क बताती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। ऑर्गेनिज़म्स का पता है वैसे आपको? अशर? ऑर्गेनिज़म्स ना हम लोग कह सकते हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो वो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें भी फ़र्क नहीं होता, वो भी इससे रिलेटेड ही है, कनेक्टेड ही है। ऑर्गेनिज़म्स हम किसी को भी कह सकते हैं, एनिमल ऑर्गेनिज़म्स हैं और बर्ड्स हैं, सी एनिमल्स, और हम हैं ऑर्गेनिज़म्स। हम ओके, सो अशर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी आपने मुझे अच्छे तरीके से बता दिया कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो आप मुझे इनमें वाज़ेह तौर पे फ़र्क बताना चाहेंगे? um, जिससे हम basically लोग किसी life एक is चीज़ को डिटरमिन कर सकें कि वो एक लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के 2 वेज़ याद रखिएगा, मटीरियल और डाई पर्सन, व्हेन पर्सन इज़ डेड। जी, अब आप मुझे yes. बताएँ। Living thing is a thing yes you know यानी कोई चीज हो यानी जिसके अंदर जान है जो मूव कर सकती हो थिंक कर सकती हो और फील कर सकती हो और इट इज रिएक्ट कर बेस्ड सकती हो। रिएक्ट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ये एक लिस्ट बना के दी हुई है। ये हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि फ़र्क बताती हैं लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में और मटेरियल में। अब देखें, ये जो लिस्ट बनी है ना, ये किस चीज़ के लिए है? ये ऐसे चीज़ों के लिए है जो कि जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर रूह होती है। अब देखें, ये एक है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स और होमोस्टैसिस और एडेप्टेशन। इसमें क्या है, ये अलग-अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे फूड से एनर्जी गेन करना, ग्रोथ लेना, यानी जैसे आपका हाइट नहीं बढ़ती आपकी, आप एक बच्चे से मर्द बन जाते हैं, बाद में मर्द से बूढ़ा बन जाते हैं। फिर उसके अलावा रिस्पॉन्स यानी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना इमोशन से, अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे। उसके अलावा सोचना, अडैप्ट करना एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ में होती हैं जो कि लिव करती है लाइफ। चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर मैनकाइंड ही क्यों ना हो। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इनमें अगर हम लोग सेपरेट करके बताएँ, यानी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखें मटीरियल ये बना हुआ है ना, अब यहाँ पे मटीरियल्स में क्या आता है? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स ना? हाउ आर दे? 1 मिनट। मटेरियल में मड आता है आर दे नॉन लिविंग थिंग? सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज़ हम लोग उनको बनाते हैं एंड दे आर मटीरियल, ओके? वो ना तो रिएक्ट कर सकते हैं, ना खुद ही चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हाँ, वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते जैसा कोई इंसान या फिर कोई एनिमल देता है। वो तो फिर देख रहे होते हैं ना हमें। और दूसरा ये कि जो मटीरियल होता है ना, वो खुद ब खुद चल भी नहीं सकता। उसको चलाने के लिए कोई ऑपरेटर चाहिए होता है। जैसा कि अगर हम लोग ना, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, तो उसके लिए जो ड्रिल मशीन चाहिए होती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बात की जाए, तो वो खुद तो नहीं चल सकती ना, उसको कुछ चीज़ों के लिए उसको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए, उसके अंदर वैसी मैन्युफैक्चरिंग हुई भी हो, जिससे वो कैपेबिलिटी वाले काम कर सके। यस तो राइट माज़ आप भी कुछ बोलें? आप तो बिल्कुल ही चुप हुए हुए हैं। आपको सब कुछ समझ आ रहा है वैसे?
मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग एक एक करके अपने ओपिनियंस और सजेशन दें, क्योंकि साइंस की क्लास में कोई बोलता नहीं है। ये तो वही चीज है जो आपने मुझे कल बताई थी। हाँ जी, लेकिन ये मैंने मतलब डिफरेंसेस तो इतने ज़्यादा नहीं बताए थे कुछ ख़ास। वैसे मैंने फिर भी थोड़ा बहुत आपको और खाला को बता दिया था। अगर हम लोग और चीज़ों की बात करें तो फिर दूसरा जो वे है ना, अशर, वो है फिर व्हेन समवन डाइज। अब आपको ये बात सबको समझ आ रही होगी। देखे ना, हमारी एक मीटिंग भी हुई थी वैसे, जिसमें हमने वैसे तो रूह के बारे में भी इतनी बात की थी। तो हमारी जो रूह होती है ना, वो कभी भी मरती नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर से परवाह ज़रूर करती है। यानी फिर हमारी बॉडी के अंदर रूह नहीं मौजूद होती, तो वो रिएक्ट भी नहीं करती, ना वो रिस्पॉन्स करती है, और वो नॉन लिविंग थिंग में बदल जाती है। वो मटीरियल फिर भी नहीं होती, वो मटीरियल कोई और चीज़ होती है। नॉन लिविंग थिंग कोई मतलब व्हेन समवन डाइज़ कोई और चीज़ होती है। यानी वो बॉडी मौजूद होती है, रूह भी होती है, लेकिन रूह निकल चुकी होती है बॉडी के अंदर से, और इसी की वजह से रूह बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही होती। जी माज़, आपको कुछ कहना है? आपने हमको गैलेक्सीज के बारे में बताना। आपको हमको गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाहिए था कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ वो फिर था। एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है। बेसिक चीज तो ये है ना कि हमारी हम पैदा कैसे हुए हैं, किसी निजाम के तहत हुए हैं ना। तो वो निजाम क्या है, अभी उसके उसके ऊपर भी आएंगे अखी, डोंट वरी। मार्स देखे लेकिन ना, अभी हमें लाइफ, के बाद सारे प्लैनेट्स अरे बने। मेरी बात तो सुने। देखें, अभी जितनी भी मैंने रिसर्च की है ना, उसके मुताबिक ये निकला है नतीजा कि एस्ट्रॉइड्स है ना, उनके अंदर वाटर मौजूद था, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी हमें ना लाइफ तो मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोड्यूस करवाई है, हम अंदर नहीं जाएंगे इसके। इसके अंदर हम लोग ना उस वक्त जाएंगे इसके अंदर जिस वक्त हम लोग यूनिवर्स की पैदाइश भी देख लेंगे, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना है हमें। उसके अलावा अर्थ कैसे बनी थी, अर्थ प्लेनेट थिया से टकराई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, आधी नहीं हुई अर्थ, वीक नहीं हुई अर्थ, फिर क्या हुआ था। फिर उसके बाद वाटर कैसे मौजूद हुआ अर्थ में। फिर उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एसिड रेन होती थी, वोल्केनिक इरप्शन होती थी, वो सारी कहाँ चली गई। फिर उसके बाद हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि इतने सालों से उसके साथ क्या होता आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग वाटर के बाद फिर हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले लैंड फॉर्म के बारे में, जो कि बनी थी, जिसके नाम मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन वो हम लोग कह सकते हैं एक प्लेनेट मतलब अर्थ के अंदर ही था वो, लैंड फॉर्म। ओके, सो उसके बाद उसके ऊपर पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद और कुछ लैंड फॉर्म्स बने थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पेंजिया के ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद बायोलॉजिकली बात करेंगे कि जैसे बायोलॉजिकल ट्रेसेस में, मतलब अगर हम लोग बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो बैक्टीरियाज कुछ ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ऑक्सीजन बनाने में बड़ी मेहनत की थी, और मेथेन और इस तरीके की ना गैसेस पाई जाती थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि भाग गई थी ऑक्सीजन के बनने से। और उसके बाद फर्स्ट आइस एज शुरू हुई अर्थ की। फिर उसके बाद और चीज़ें हुई, फिर कैम्ब्रियन पीरियड आया। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में ही बता दिया है सब कुछ। तो हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको लाइफ की इंट्रोडक्शन दी, लाइफ की डेप्थ में ना हम लोग बाद में जाएंगे। इस वक्त हम लोग अर्थ और यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेंगे। उस एस्ट्रॉइड के अंदर कुछ काला सा भी कुछ होता है। नहीं, एस्ट्रॉइड बल्ब। की अभी कोई मिशन हुआ है, मुझे याद सही से नहीं है, जिसके तहत हमें ये पता चला है कि जो एस्ट्रॉइड्स है ना, उनके अंदर भी पानी मौजूद होता है आइस की फॉर्म में। और ये एस्ट्रॉइड्स मेरी रिसर्च के मुताबिक अर्थ से आके हर रोज 22, 23, 24, 25, 26, पता नहीं 100 मरतबा, 50 मरतबा इतनी बार टकराते थे। और इन्हीं की वजह से बैक्टीरियाज आते थे अर्थ में, जो कि ऑक्सीजन बनाए, और वो वाटर में जाते थे, वाटर में भी जाते थे, और फिर और भी जगहों पे जाते थे, और वो ऑक्सीजन बनाते थे। उससे पहले मेथेन वगैरह और सल्फर वगैरह, ये सारी चीजें, गैसेस पाई जाती थी अर्थ में, जो कि भाग गई थी।
फिर आइस एज स्टार्ट हुई थी। ओके अशर, और कुछ पूछना? आपका हैंड रेज भी हुआ हुआ है। उसके अंदर जब कुछ काला सा होता है वो क्या होता है? क्या काला काला? I- मैंने सुना था जब एस्ट्रॉइड जब एक पहाड़ से टकराया था ना, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, तो उसके बाद क्रेटर। ना, यस, तो वहां से ना कुछ काला, एक ब्लैक चीज की लेयर बनी हुई दिखी थी एक माउंटेन के नीचे। आपने कोई वीडियो देखी है? जी। कैन यू शेयर इट विद मी? आई डोंट नो बट मैंने सुनी थी, उस चैनल का भी मुझे नहीं पता। ओके लेकिन देखें, एस्ट्रॉइड्स खुद भी ब्लैक ही होते हैं। दूसरा ये कि जितने भी एस्ट्रॉइड्स, अब तो एस्ट्रॉइड अगर गिरे भी ना अर्थ में, तो वो पहले ही चूरा बन जाते हैं, या तो मतलब वही सैंड बन जाते हैं, या फिर वो काले हो जाते हैं। बताओ क्यों? इसका मकसद ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, वो जब उसके अंदर आते हैं तो वो अर्थ में मतलब आके फुल उनकी वो रेड हो जाते हैं। इतनी आग उनको लग रही होती है जिस स्पीड से वो गिर रहे होते हैं नीचे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते आते। तो मतलब ना वो ब्लैक हो जाते हैं। तो शायद इससे आपका कोई ब्लैक क्रेटर की आप कह रहे हैं बात, कि उसकी वजह से ब्लैक क्रेटर में ऊपर कुछ हुआ था, मतलब ब्लैक ब्लैक। वरना चाहे तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, मैं देकर आपको सही से ज्यादा बता दूंगी। ढूंढूंगा मैं उसे, दैट वीडियोस। अच्छा फिर आप अपना माइक म्यूट कर लें फिर। माया, अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है आपको? जी। अच्छा आप, अशर या माज, आप मुझे कोई भी मटेरियल और डाइट पर्सन में फर्क बता सकते हैं? मटेरियल और डाइट पर्सन में, जो मर जाता है बंदा, और एक मटेरियल में। मटेरियल मटेरियल खराब हो जाते हैं, लेकिन मटेरियल। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया शायद से मैंने। मैं ये कह रहा था कि मटेरियल और एक मरे हुए शख्स में फर्क ये होता है, एक डाइट पर्सन में फर्क ये होता है कि जो डाइट पर्सन होता है ना, वो कोई मतलब ना, वो अब चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कभी भी नहीं फिर सकता, आप चाहें भी तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं मौजूद होती। और जो मटेरियल होता है, वो तो फिर उसकी रूह नहीं होती ना, उसके तो फिर पार्ट्स होते हैं। अगर वो खराब भी हो जाए तो फिर उसके पार्ट्स चेंज करवाने पड़ते हैं, फिर वो वापस चलना शुरू हो जाता है, वरना उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फर्क ये है मटेरियल और एक डाइट पर्सन में। अच्छा, रूह कभी भी नहीं मरती। रूह तो कभी भी नहीं मरेगी। रूह कैसे मरेगी? आप खुद सोचे ना, हमें जन्नत में नहीं जाना, हमारी रूह होंगी ना वहां पे, तो वहां पे हमारी बॉडीज, वैसे शायद बॉडीज भी हो, लेकिन हमारी रूह तो फिर भी नहीं मरेगी। अभी फिर वो मतलब अल्लाह सुब्हानो तआला हमें एंजल्स लेकर जाएंगे वहां पे, और फिर रैंक्स के मुताबिक रखेंगे। कुछ लोग उनमें से जहन्नुम में जाएंगे, कुछ लोग जन्नत में। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं जिंदा रहेगा। जिंदा कैसे रहा जाता है? रूह जिंदा थोड़ी ना होती है, वो तो फिर मुर्दा ही होती है ना। लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में होती है। दूसरा ये कि मतलब ना, अल्लाह ताला ही जिंदा रहेंगे, वो बात तो मानी जाती है, लेकिन हम लोग तो फिर रैंक्स के मुताबिक अलग अलग जगहों पे जाएंगे ना, कोई जन्नत में जाएगा तो कोई जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को हमें पनिशमेंट भी तो देनी है। या फिर वो मतलब गंदे लोगों को जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और अच्छे लोगों को फिर मतलब जन्नत में डालना है। तो फिर रूह कब मरती है? रूह तो कभी भी नहीं मरेगी। हम रूह इंसान मर जाते हैं, लेकिन ए, रूह नहीं नहीं। देखें, बॉडी के अंदर से रूह निकलती है, इसका मतलब बॉडी के अंदर जान नहीं है, लेकिन रूह नहीं मरती कभी भी। यस, राइट। क्या? एक मिनट।
लेकिन वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही नहीं मरते। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I tell about this, Moaz beta? Yes, teacher. Auntie, your voice is breaking. I Hmm. can't hear you properly. Okay, अब आ रही है आवाज? Yes. मुआज देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा रहेंगे। वो फरिश्ता भी मर जाएगा जो हमारी जान निकालता है, मगर रूह जो है ना, वो उसको जान की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जान की जरूरत है। तो जितनी भी जानदार लिविंग थिंग्स होंगी ना, इंक्लूडिंग इंसान, फरिश्ते, जानदार एनिमल्स एंड प्लांट्स, पूरी दुनिया में जितनी भी अल्लाह ताला ने क्रिएशन को बनाया है और उनके अंदर जान डाली है, ताकि वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं ना, इसीलिए ताकि वो मूव कर सकें और वो सारे काम कर सकें। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही इसी पर्पस के लिए फरमाया है कि सब मर जाएंगे और अल्लाह ताला जिंदा रहेंगे। और रूह जो है वो लेकिन रूह तो जान ही होती है। नहीं, रूह जान नहीं होती। रूह जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा कायम रहने वाली है, जो अल्लाह ताला ने जिसको ऐसा बनाया है कि वो अल्लाह ताला जब हमें दोबारा क़यामत के दिन उठाएंगे ना, तो उस वक्त हम अपनी बॉडीज की फॉर्म में होंगे और रूहें हमारी बॉडीज में चली जाएंगी और उसके बाद फिर हमसे हमारा हिसाब किताब लिया जाएगा। मगर रूह जो है वो, जब हम मर जाते हैं ना, तो हमें हमें सब कुछ पता चल रहा होता है, हम सब कुछ सुन भी रहे होते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमारे ऊपर रो रहे हैं कि हम दुनिया से चले गए हैं। और जो बॉडी होती है ना, डेड बॉडी, सिर्फ उसके अंदर से जान निकली होती है, लेकिन जो रूह होती है ना, वो सब कुछ फील कर रही होती है। वो सब कुछ देख देख रही होती है, उसको पता होता है कि मैम, मेरा रिलेटिव है कौन नहीं। ये इट्स अ बिग टॉपिक। आई वुड सजेस्ट कि तो मैम all of you guys have to do the research. Allow तो you मैम to, क्या and then you can discuss about this. यस तो आई मैम क्या हम लोग सुन सकते हैं वो ये रोज रोने की आवाज होती है? I don't got it. जी बेटा। मैम जो क्या हम भी उस आवाज को सुन सकते हैं? देखें, मैं आप लोगों को फर्क बताता हूँ, एक जानदार चीज में और एक रूह में। देखिए, जो जानदार चीज होती ना, वो अर्थ में ना, अभी हम लोग अर्थ में हैं, सही है, हम जानदार हैं इसलिए हम अर्थ में हैं। जो रूह होती है ना, वो भी उसी अर्थ में है, यानी यही है। वो देख सकती है हमें, वो सुन भी सकती है हमें, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते ना सुन सकते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल है। वो हमें देख सकती है, वो हमें सुन सकती है। समझ आई आपको? हम उनको नहीं देख सकते, हमें बस ये पता होता है कि वो मर गया है बंदा, लेकिन उसकी रूह वहीं होती है, वो बॉडी में नहीं होती। वो हमें फिर भी देख सकती है, सुन सकती है। इज दैट राइट? I don't think so. व्हाट? You guys have to do the research. मैंने भी यही कहा है, वहां आप पहले रिसर्च करें, फिर उसके बाद हमें बताएं। कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सही से समझ आ जाएंगे। फिर रूह तो एग्जिस्ट फिर करती है ना, क्योंकि फिर अल्लाह ताला को रूह से ही सवाल जवाब करना है, यानी अमी से करना है। बॉडी क्यों बोल रही है? क्योंकि उसके अंदर रूह मौजूद है। जब वो मर जाएगी तो सिर्फ बॉडी के अंदर से रूह निकलेगी, रूह मौजूद होगी वहीं पे। रूह नहीं मरती, बॉडी के अंदर से जब जान निकलती है तब बॉडी उसके अंदर से लाइफ खत्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो बंदा मर गया है। उसकी रूह I नहीं think time होती is है, running out. इसलिए I अल्लाह think ताला you guys have to do the research on it, and you have to move on the specific topic. Yes, I also am saying to them, Maz and Asher, I am suggesting you this, that do research on नॉन लिविंग थिंग्स। आमाज आपने तो वैसे नहीं की है, लेकिन आपको करनी चाहिए, आपको कल तक का वक्त दिया है। अशर, आप देख लें, आप जब भी कर पाए आप मुझे सेंड कर दें करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के ऊपर, और ये वेज याद रखिएगा।
और रूह के बारे में भी टॉपिक याद रखिएगा। तो This आई topic थिंक would need a lot of discussion. So tomorrow तो would be फिर the तो class, na? So मैं वर्सेस ये वाली कुरानिक रिसर्च करके ले आऊंगा, उसमें अल्लाह ताला ने कोई लॉजिकल जवाब दिया वो भी होगा इससे रिलेटेड। तो आई थिंक सो यहीं तक हम लोग अपना सेशन रखते हैं। मास जो है आप देख लीजिएगा, अगर आपको मेरी बात से इख्तिलाफ हो रहा है तो इट्स ओके। आप जो है ना अपनी रिसर्च वगैरह करके पेश करिएगा, मुझे बताइएगा उसके बारे में। अशर आप भी कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग फिर अपना सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर योर टाइम। हियर डू द रिसर्च, दिस इज योर होमवर्क। तब हम मरते हैं तो फिर फरिश्ते रूह को अल्लाह ताला के पास लेकर जाते हैं, और अल्लाह ताला तो दुनिया में नहीं है, वो अर्श में है। अर्श पे लेके फौरन जाते तो हैं। फिर भी नहीं लेकर जाते, देखे ना, फौरन तो नहीं लेकर जाते, वो तो फिर पहले कब्र में होता है वो बंदा। फिर उसके अलावा क्या होता है कि उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, हु इज योर लॉर्ड, हु इज योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर दीन, इस तरीके के सवाल जवाब। अगर वो ना दे पाए तो फिर उसके साथ मसला होता है, क्योंकि वो फिर जहन्नुम में जाता है, वरना फिर वो जन्नत में जाता है अगर वो सवाल जवाब दे दे सही से और वो एक अच्छा इंसान रहा भी हो दुनिया में। हम लोग यहीं तक रखते हैं अपनी डिस्कशन, यहीं तक महदूद रखते हैं, और फिर हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुरानिक वर्सेस भी लाने की कोशिश करूंगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ अशर, अल्लाह हाफिज़ मास, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।